Hi students. Now today's topic is retirement of partnership, and today is the last problem which we are going to be solve of this chapter. So next lecture we will start as a new chapter. The chapter name is Death of Partnership, and I hope you are going to be understand this retirement of partnership all the aspect. Now today we are going to start the if the in board examination will ask the journal entries. So how we will write, because we know the ledgers and uh, you know very well. But now sometime in board question ask the about the journal entries of retirement of partnership. So one of them going to be solve the this type of problem also, where we are going to be solve it out. So we are solving the last problem of this chapter very soon, page number 180 and question number 7. The partner name is Jaya, Maya and Mamta. So page number 180, question number 7. Journal entry we are going to be solved. You know the date journal, it is all the lines, date, particular, and then we are solve it out right here date. So now first फ्रॉम द बैलेंस शीट से अपने को कितना एंट्री मिलता है, पहले ये चेक करना है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड से क्रेडिटर्स जो से कोई एंट्री पास नहीं होती, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल जो भी एसेट लाइबिलिटीज है उससे बैलेंस शीट का पोस्टिंग होता है और उसकी एंट्री पास होती है कब, जब हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे कि एसेट्स कितना कम हुआ ज़्यादा हुआ, लाइबिलिटी कितना कम हुआ ज़्यादा हुआ. तो नाउ क्रेडिटर्स को हमको ऐसे ही छोड़ना है, बिल्स को ऐसे ही छोड़ना है मतलब जब हम उसका एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब हम लोग उसका एंट्री पास करेंगे. कैपिटल का तो पोस्टिंग होता है, जनरल रिजर्व है, रिजर्व तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ऑलवेज जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द among the all the three partners. So now what is the profit ratio? 3:3:2. You just think about that, make the underline. 3:3:2 means 3:3:3. 3:3:6 plus 2, that means 8. If 8 rupees is a profit or loss, 3 rupees of out of 8 Jaya, out of it 3 rupees of Maya and 2 rupees of Mamta, and retiring partner is a Mamta. Make underline, Mamta is a retiring partner. So now general reserve we have to distribute and we can write the date of general data पूछता है तो date we write 1st April 2019. 1st April 2019 general reserve account debit, general reserve account debit to Jaya capital account. First partner name is Jaya capital account. Second is Maya's capital account. These all the टेक्स्ट बुक पे सब दिया है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है. ममता कैपिटल अकाउंट, being general reserve distributed among the partner. So ratio is 16,000. अब 16,000 का रेशियो है 3/8. 8 का 8 2 जा 16, 2 6,000. So first partner's name will come 6,000, second also 6,000, and total is 16,000. So last वाले total is 16,000. 6, 12 and 4,000 will come here of last partner. तो इस तरह से अपना पहला मैंने आपको रिजर्व बता दिया. Now डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर में जाता है रिजर्व. रिजर्व इज अ नॉमिनल अकाउंट. इट इज फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेस इज डेबिट, income and then is a credit. Now it is expenses and losses, so that's why it come to the general reserve account. And all partners name is a personal account. So debit the receiver, credit the giver. So that means उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा, इसलिए वो क्रेडिट साइड में आया. Now these all the things and then all the information of assets. जैसे जैसे एसेट्स दिया वैसे वैसे हम लोग उसका जनरल एंट्री में ध्यान देंगे. Now asset will be revalued as under, asset revalued हो रहा है
लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक आई टोल्ड प्रीवियसली इट्स लाइव स्टॉक मतलब क्या होता है, वह स्टॉक जो पशु पक्षियों और जानवर से संबंधित होते हैं उसको लाइव स्टॉक कहते हैं। तो लाइव स्टॉक 24,000 रीवैल्यू इज देयर नाउ। अपने पास लास्ट टाइम लाइव स्टॉक 25,200 था, अभी 24,000 हो गया, यानी कम हो गया। और जब भी कोई एसेट्स कम होता है तो उसका इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड जाता है या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड जाता है। यानी प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट डेबिट हो जाएगा तो लाइव स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा। सेम वे आपका प्लांट एंड मशीनरी भी है, 32,000 है और 34,000 है, यहाँ पे कम हो गया। इक्विपमेंट भी नहीं है, इक्विपमेंट तो नहीं, जो कम होता है, नहीं एसेट कम होता है तो रियल अकाउंट डेबिट होता है, तब उसकी एंट्री क्या आती है। और एक ऑलरेडी देख लेते हैं हम लोग, ऑलरेडी कितना दिया है, एन आइटम 400, मिस्टर राम अवर मे बी कस्टमर मे नॉट बी एबल टू पे डी 2,000। अच्छा 2,000 दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, जो नहीं दे पा रहा है बैड डेट ऑलरेडी जैसे ही होता है, बैड डेट नहीं है पर ऑलरेडी 180 इस चैप्टर में। तो अपने पास 50,000 था और 2,000, यानी पहले तो पार्टनर जब रिटायर हुआ तो 0 था, अब ये 2,000 हो गया, यानी यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ गई। और जब लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो उसका एसेट डिक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज के हिसाब से रीवैल्यूएशन डेबिट साइड में जाएगा। तो इसकी एंट्री जैसे कि यहाँ पे दिया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइव स्टॉक टू आपका प्लांट एंड मशीनरी and to RDD account, being assets decrease and liability increase। तो इस तरह से आपको फाइनलाइज करना है और अमाउंट में ध्यान देने वाली बात यहाँ पे आएगी, क्योंकि लाइव स्टॉक तो कितने हाउ मच कितने से हो रहा है, तो 25,000 से 24,000 हो गया, 25,200 से 24,000 हो गया, तो 1,200 इट इज आपका यहाँ पे आएगा। सेकेंड प्लांट एंड मशीनरी जितना था 34,800 था, अब 32,000 हो गया, तो कितना कम हो गया, 2,800 रुपये से कम हो गया। और लाइबिलिटी ऑलरेडी जो था दैट पार्टनर्स बिफोर इट इज 0, नाउ इट इज 2,000, तो आपका यहाँ पे 2,000 हो जाएगा। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये 6,000 आएगा। तो इस तरह से आपका दूसरा जनरल एंट्री हो गया ना। तीसरा जनरल एंट्री करने से पहले मैं बताऊंगा कि यहाँ पे इक्विपमेंट के बारे में बताया। इक्विपमेंट इज 16,800 एंड अर्लियर इट वाज 16,000, तो 800 रुपये बढ़ गया। और उसके बाद क्रेडिटर्स के बारे में दिया, नो लॉन्डर 400 इंटू 400 में 34,400 था, अभी 400 उसका कम हो गया। तो उसकी वैल्यू जब कम हो जाती है दैट मीन्स आपको उसमें फ़ायदा हुआ। तो पे देना था 34,400, अभी देना पड़ेगा 400 रुपये कम रहे 34,000, तो लाइबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है कितने रुपए से, 400 रुपये से। तो इसलिए जब रीवैल्यूएशन में एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है तो फिर रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाता है। यानी मैंने आपको बताया था एसेट डिक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज, यहाँ एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैसे मालूम पड़ा डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इक्विपमेंट 16,000 है और अभी यहाँ पे कितना हो गया 16,800, तो इक्विपमेंट यहाँ पे क्या बढ़ रहा है। जब अगर एसेट बढ़ता है तो रीवैल्यूएशन या प्रॉफिट एडजस्टमेंट क्रेडिट हो जाता है, यानी उसके क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो वो अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, और जो एसेट है वो डेबिट हो जाता है। तो इस तरह से क्रेडिटर क्या लाइबिलिटी है, तो आपको एसेट डिक्रीज लाइबिलिटी इंक्रीज और एसेट इंक्रीज लाइबिलिटी डिक्रीज। तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो कम हो रही है तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो इसके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला मैंने बताया, इस तरह से आपको करने के बाद ये जनरल लिखने के बाद आपको एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये जो आपकी जनरल एंट्री है, ये पेज नंबर 181 पे ध्यान से देखो, यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है पर ये 3 क्रेडिट हो रहा है, तो जहाँ पे डेबिट में तीनों नाम यहाँ पे लिख देना है। आपको जनरल इधर पोस्ट लेवल में सिखाया है कि रिवैल्यूएशन डेबिट और डेबिट में जाके क्रेडिट का नाम लिखना है, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो उसका डेबिट का नाम लिखना है। फिर इसको टोटल करेंगे तो डेबिट का 6,000 आता है, क्रेडिट का आता है आपको 8,400 रुपया, 6,000 में 1,200 रुपया माइनस किया तो 4,800। वो तीनों को उसके रेशियो में बांटना है। उसका रेशियो क्या है 3:3:2, फिर रेशियो में आएगा 1,800 1,800 1,200।
इसकी जनरल एंट्री आएगी। अब ये देखो रिवैल्यूएशन, ध्यान से देखो, रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड हो रहा है ना, तो डायरेक्ट रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा और ये पार्टनर्स का अमाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसलिए पार्टनर्स जया माया ममता डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। और लॉस हुआ तो ये क्रेडिट साइड में लॉस होता है, डेबिट में प्रॉफिट होता है। ध्यान से देखो यहाँ पे पेज नंबर 181 पे दिया है। तो आपको ये जैसे ही आपको पता चला ये क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में आएगा, लॉस हो रहा है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप देख के लिख लेना। और लास्ट वाला जो ममता कैपिटल लोन जो बता रहा है, ये आपको लेजर बनाना पड़ेगा इसका पार्टनर्स कैपिटल का। तो वेरी इजी, इसमें होता ही क्या है, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड में जाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉडडाउन पहले आ जाएगा तीनों का, फिर रिजर्व बढ़ गया, फिर उसके बाद जो लॉस आया था वो बांट दिया। बस जो पार्टनर सुरेश रिटायर हो रहा है पहला पार्टनर, तो सुरेश का 40,000 यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में, देखो ध्यान से। और डेबिट में मान लो 1200 रुपये ही है, तो 40,000 में 1200 माइनस किया तो 38,800 आया, और इसको नाम दिया टू सुरेश लोन अकाउंट। इसकी जनरल एंट्री बनेगी 38,800 की, अंडरलाइन करो। क्या एंट्री बनेगी, ममता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ममता लोन अकाउंट बीइंग बैलेंस अमाउंट ड्यू टू ट्रांसफर टू द ममता। क्योंकि एडजस्टमेंट सामने लिखा है, चौथा एडजस्टमेंट, तो जो भी अमाउंट दी हुआ है ममता का वो ट्रांसफर हर लोन अकाउंट में करना है, और उसकी जनरल एंट्री बनेगी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप में लेजर बनाना पड़ेगा, लेजर में सब पोस्टिंग करना पड़ेगा। और पहला पार्टनर जो रिटायर हो रहा है सुरेश, उसका 40,000 क्रेडिट में दिया है और डेबिट में 40,000 है, पर ये 38,800 भूल जाओ, ये आया कहाँ से, 40,000 में से 1200 माइनस किया, इट विल कम 38,800, और ये 38,800 नाम क्या देंगे, टू सुरेश लोन अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल मतलब सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुरेश लोन अकाउंट 38,800, यहाँ पे लास्ट एंट्री है। इस तरह से आपकी जनरल एंट्री आ जाएगी, ये आपको लेजर वर्किंग नोट हो जाएगा। तो ध्यान रहे, अरे 5 जनरल एंट्री सिर्फ बोला है तो सिर्फ 5 जनरल एंट्री आपको करनी है। मैंने पहला एंट्री बोर्ड में बताया, दूसरा भी बताया, तीसरा भी मैंने रिवैल्यूएशन के हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। चौथा कहाँ से आया, ये रिवैल्यूएशन नोट बनाने से आया, और पाँचवा कहाँ से आया, पार्टनरशिप नोट बनाया, यहाँ बैलेंस शीट बनाना नहीं है। तो होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, स्टे एट होम एंड फाइन। तो रिटायरमेंट इज डेट ओवर नाउ, न्यू चैप्टर डेथ ऑफ रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनरशिप। रिटायरमेंट जैसा ही है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें डीन रेशियो था, उसमें बेनिफिट रेशियो आएगा, और हम उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे एंड डेफिनेटली विल टेक इट आउट। क्योंकि डेथ ऑफ पार्टनरशिप करेंगे तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रेशियो का एक चैप्टर है, वो ऑप्शन में और आएगा। डेथ का मार्किंग स्कीम ओनली 8 मार्क है, तो हम लोग उस हिसाब से प्लान करेंगे कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 9, अगर आप 5th करते हो, 5th मतलब डेथ ऑफ पार्टनरशिप करते हो, तो 9th वाला चैप्टर आप ऑप्शन में और डाल सकते हो, क्योंकि और रहेगा वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। क्योंकि डेथ जो है वो पार्टनरशिप जैसा मिलता जुलता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एकदम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है। डेथ के प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे एंड डेफिनेटली यू विल गेट एंजॉय ऑफ ऑल द थिंग्स। सो प्लीज स्टे एट होम एंड कुछ भी डाउट्स है तो मुझे पूछो। इस प्रॉब्लम का लाइन ड्रॉ करके इमेजेस मुझे भेज दो फॉर योर अटेंडेंस के लिए, एंड वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, सी यू।